any device, any medication, any procedure, or any behavior. Okay. What is contraception? Contraception, also known as the birth control, is the act of preventing pregnancy by a device, by any medication, by any procedure, and by any behavior. Okay. So, classification क्या है? सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया जाता है टेम्परेरी एंड परमानेंट. First, we will discuss the temporary method, then we will go to the permanent method. Temporary method में सबसे पहले हम देखेंगे natural family planning method. The first method is the rhythm method, also known as the calendar method. It is based on Ogino-Naus theory. What is this? Ogino-Naus theory. Basically, this method is discovered by Ogino and Naus. That's why it is known as Ogino-Naus method. So the first method is the rhythm method and the calendar method. Okay? तो ये method क्या बोलता है? Suppose this is the first day of the menstrual cycle and this is the 7th day. So from 8th day to 19th day, the intercourse is unsafe. तो unsafe period क्या है? From 8th day to 19th day of menstrual cycle. The first method is the rhythm method and the calendar method. Second method is the Tirumala method, which is also known as the standard day method or cyclobead method. इसमें क्या होता है? ये जो इमेज है यहाँ पे, first of all let me rub this. इसमें स्ट्रिंग में 32 बीड्स होती हैं एंड बीड्स जो होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं. बेसिकली 4 कलर्स की बीड होती हैं इसमें. फर्स्ट इज द रेड कलर, सेकेंड इज द वाइट कलर, थर्ड इज द ब्राउन एंड फोर्थ इज द डार्क ब्राउन कलर. द रेड बीड, ये जो इमेज इसको देखिए, रेड बीड इज द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड. ओके. एंड रेड बीड के ऊपर एक मूवेबल रबर रिंग है, इसको मूव करते रहते हैं. वाइट बीड से क्या होता है? अगर यहाँ पे रबर पहुंचेगा इसका मतलब क्या है? दिस इज द अनसेफ पीरियड. ओके. प्रेगनेंसी इज मोस्ट लाइकली. एंड द ब्राउन बीड में यहाँ पर और इस साइड में प्रेगनेंसी इज वेरी अनलाइकली. एंड डार्क ब्राउन बीड टेल्स इफ योर साइकिल इज शॉर्टर देन, डार्क ब्राउन बीड इज द 26th बीड. ओके. दिस टेल्स इफ योर साइकिल इज शॉर्टर देन 26th day. तो तिरुमाला मेथड is also known as the standard day method and cyclobeads method. इसमें क्या होता है? 32 beads होती हैं string में different colors की. Basically 4 colors की होती हैं. First is the red color, second one is the white color, third one is the brown color and fourth one is the dark brown color. ये रबर को मूव करते रहते हैं. यहाँ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रेड बीड से, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड रबर को मूव करते रहते हैं. जब इस एरिया में पहुंचते हैं, दिस इज द अनसेफ पीरियड. एंड ब्राउन बीड इज प्रेगनेंसी इज वेरी अनलाइकली. ओके. एंड डार्क ब्राउन बीड इज द 26th बीड, ओनली यूज्ड बाय द फीमेल whose साइकिल लेंथ इज between 26 to 32 days. Okay. The first method is the rhythm method or the calendar method. आपने याद रखना है कि it is based on the Ogino-Naus theory because basically this method is discovered by the scientist named the Ogino and Naus. Okay. Second method is the Tirumala method, which is also known as the standard day method or the cyclobead method. इसमें 32 beads होती हैं string में 4 different colors की. Next is the cervical mucus method, which is also known as the Billings method. जो different synonyms है इस method के, वो आपने याद रखने हैं. When cervical mucus looks like egg white, stretchable, means about to ovulate. इसमें female अपना cervical mucus check करेगी. If cervical mucus looks like egg white or stretchable, means the female is about to ovulate. Okay.
तो इस टाइम पे क्या करना है, फॉर couple of days should avoid intercourse. Okay, this method is basically based on the consistency of cervical mucus. Okay, when cervical mucus looks like egg white or stretchable, means the female is about to ovulate, then for a couple of days the couple should avoid intercourse. This method is based on the consistency of cervical mucus. The next method is the basal body temperature. Okay, हमको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन की इफेक्ट की वजह से जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है. The next one is the symptothermal method. Symptothermal method is the combination of BBT, is a combination of basal body temperature and the cervical mucus method. Okay, the last one is the lactational amenorrhea. Among the natural family planning method, the best one is the lactational amenorrhea. इसमें क्या होता है, बेसिकली लैक्टेशन के टाइम पे फीमेल बॉडी में प्रोलैक्टिन रिलीज होता है. प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिट हाइपोथैलेमस and pituitary. That's why there is no FSH, no LH and no GnRH. Okay, और इसकी वजह से there is no ovulation. Okay, lactational amenorrhea में क्या होता है, it is the best method. Lactational amenorrhea में prolactin inhibit करता है hypothalamus and pituitary को, where there is no FSH, no LH, no GnRH and there is no ovulation. तो among the natural family planning method, the least failure rate is of the lactational amenorrhea. Okay, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में. सबसे फर्स्ट मेथड है रिदम मेथड और द कैलेंडर मेथड, which is based on the Ogino-Naus theory. इसमें unsafe period क्या है, day 8 to 19 of the menstrual cycle is the unsafe period. Second one is the Tirumala method, which is also known as the standard day method or the cyclo-bead method. इसमें 32 beads होती हैं string में और 4 different colors. White में क्या होता है, प्रेगनेंसी वाइट वाली जो बीड्स है, अगर उस टाइम पे द प्रेगनेंसी इज मोस्ट लाइकली, दैट इज द अनसेफ पीरियड. ओके, third one is the cervical mucus method, which is based on the consistency of cervical mucus. The fourth one is the basal body temperature, which increases because of the effect of the progesterone. Okay, the fifth one is the symptothermal method, which is the combination of basal body temperature and the cervical mucus method. Lactational amenorrhea is the best one among the natural family planning method. It has the least failure rate. Okay, इसके बाद एक होता है रूल ऑफ थ्री. रूल ऑफ थ्री क्या बोलता है, लेट मी रब दिस फर्स्ट. रूल ऑफ थ्री बोलता है कि contraception started by 3 months in exclusive breastfeeding female. Okay, if a female is exclusively breastfeeding, then she should start contraception by the 3 months. And if the female is non-breastfeeding or the female is partially breastfeeding, then she should start taking contraception by the 3 weeks. Okay, this is the rule of three. If the female is exclusively breastfeeding, then the contraception should be started by the 3 months of delivery. And if the female is non-breastfeeding and if partially breastfeeding, then she should start taking contraception by the 3 weeks. The next type of method is the barrier method. Barrier method में क्या क्या आते हैं? The first one is the condoms, which is of male and female type. Second one is the vaginal sponge, and third one is the cervical cap and diaphragms. Okay, तो हम इसको एक एक करके लेंगे. The first one is the male condoms. इसके advantages क्या होते हैं?
Basically, it protects against sexually transmitted diseases and pelvic inflammatory diseases. Okay, and they also protect against the HPV. This is HPV is the human human papilloma virus. HPV is the most common cause of cervical cancer. तो इससे क्या हुआ? They also are protective against the cervical cancer. तो advantages क्या है मेल condoms के? First is the protection against the sexually transmitted diseases and pelvic inflammatory diseases, human papilloma virus, okay, which is, in turn is protective against the cervical cancer. It is also used for atonic PPH. Atonic PPH में किस तरीके से यूज करते हैं? It is known as the condom tamponade. ओके, इसमें क्या मेथड होता है? इंसर्ट करते हैं कॉन्डम्स को यूट्रस में और कॉन्डम इज इन्फ्लेटेड विद नॉर्मल सेलिन. ओके, इससे क्या होता है? exert mechanical pressure over the walls and which in turn decreases the bleeding. Okay, this is the mechanism behind a condom tamponade. This is for atonic PPH में. PPH is the postpartum hemorrhage. When the uterus is not properly contracting, then we can use condom tamponade. Condom tamponade में क्या होता है? Condom is inflated with normal saline. इसको condom को attach कर देते हैं folies के साथ ऐसे करके, फिर इसको यूट्रस में डालने के बाद इसको इन्फ्लेट कर देते हैं. ये वॉल्स के ऊपर ऐसे, ये वॉल्स है अगर यूट्रस की, तो यहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स पे, तो इस वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग decreases. Okay, then the other advantage is the decreased chance of ectopic pregnancy. Basically क्या होता है कि when there is first let me rub this. Okay, basically क्या होता है? If the sexually transmitted diseases are not transferring, if there is less chances of PID, तो इससे क्या होता है? एडिशंस फॉर्मेशन जो होता है वो भी कम होता है, और जब एडिशंस फॉर्मेशन कम होता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं. Then when it is also used in the female with anti-sperm antibodies. इसका मतलब क्या हुआ कि जब condoms यूज कर रहे हैं तो sperms are not deposited in the female genital tract. Okay, this is the most important part. It is preferred in HIV patient. Okay, तो आपको ये पता होना चाहिए कि HIV पेशेंट में कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस जो होता है दैट इज द कॉन्डम्स. ओके, एक क्वेश्चन अगर है कि बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन इन HIV पेशेंट. ओके, तो दिस इज द मेल के लिए क्या होता है? बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन इन HIV पेशेंट. तो मेल के लिए क्या होता है? मेल के लिए होता है कॉन्डम्स, और फीमेल के लिए होता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. तो इसके यूज करने से क्या होगा? दे बेसिकली हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. ओके, पर अगर क्वेश्चन आता है बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ HIV, देन दिस इज ऑलवेज द बैरियर मेथड. ओके, बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ HIV, then it is always the condoms. Okay, Nirod is the brand which is included in the National Family Planning Program. Okay, next we will take the female condoms. Female condoms are also known as the Fem Shield. Okay, Fem Shield has two flexible rings. It is also known as the
फेम शील्ड, इट हैज 2 फ्लेक्सिबल रिंग, बेसिकली इस टाइप से होता है ये. ओके इसमें जनरेशन होती है. फर्स्ट FC1 इज मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन, FC2 it is made up of nitrile, and nowadays FC3 is also available, which is made up of latex. Okay, but government of India supplies this FC2. Okay, supplied by government of India. They also decreases the chance of sexually transmitted diseases. Okay, so female condom is also known as the Fem Shield. It is a type of barrier contraceptive. It has 2 flexible rings. FC1 is made up of polyurethane, FC2 is made up of nitrile, and FC3 is made up of latex. And they decreases the chance of sexually transmitted diseases. Government of India supply FC2 that is made up of nitrile. Okay. Next we will take the Today or vaginal sponge. ये जो पिक्चर दिख रही है, this is the vaginal sponge. What it contain? It contain 1 gram non-oxynol 9. Non-oxynol 9 क्या है? Basically this is the spermicide. Spermicide क्या करता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है स्पर्मिसाइड का? ये disrupt the membrane of sperms. Okay. जो टुडे है या फिर वेजाइनल स्पॉन्ज है, इट इज यूज अगेंस्ट STD बट नॉट HIV. They will protect against STD but not HIV. Okay, and it is inserted 24 hours before intercourse and removed after 6 hours. Okay, you should remember this. It is inserted before 24 hours and removed after 6 hours. The last point is there is no risk of toxic shock syndrome. Okay, toxic shock syndrome क्या होता है? It is, let me rub this first. It is caused by the Staphylococcus. Okay, तो Staphylococcus क्या होता है? एक बैक्टीरिया है which produces the enterotoxin and causes toxic shock syndrome. तो ये जो 1 gram non-oxynol 9 है, it basically act as an antibiotic. Okay, thus they protect against the toxic shock syndrome. तो टुडे और वेजाइनल स्पंज क्या है? It contains the 1 gram non-oxynol 9, which is the spermicide. Spermicide का mechanism of action क्या होता है? They basically disrupt the cell membrane of the sperms. Okay, they are protective against STD but not HIV. They should be inserted before 24 hours and removed after 6 hours. And there is no risk of toxic shock syndrome. The next one is the vaginal diaphragm and cervical cap. Okay, basically इन दोनों में सिर्फ शेप का और साइज का फर्क होता है. This is the cervical cap and this is the diaphragm. और जो टुडे वेजाइनल स्पॉन्ज होता है, उसमें यहाँ पे ऐसे करके रबर लगा होता है. तो इस तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. दिस इज द वेजाइनल स्पॉन्ज. यहाँ पे इमेज में देखो, ये है, दिस इज द वेजाइनल स्पॉन्ज. यहाँ पे इस तरीके से रबर अटैच होता है इसमें. द वेजाइनल डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स आर यूज्ड with spermicide. Okay, and they are not protective against HIV. Same, they are protective against sexually transmitted diseases, but they are not protective against HIV, and they are associated with risk of toxic shock syndrome if persist in the body for more than 24 hours. अगर 24 hours से ज़्यादा है ये बॉडी में, तो they increases the risk of टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. तो आपको पता होना चाहिए कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का रिस्क कौन से बैरियर मेथड के साथ होता है. ओके, तो हमने क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले बैरियर मेथड में 4 हैं बेसिकली. कॉन्डम्स में मेल एंड फीमेल, नेक्स्ट वन इज द वेजाइनल स्पंज, एंड थर्ड वन इज द वेजाइनल डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स. ओके, तो बैरियर मेथड के एडवांटेजेस हमने देख लिए. मेल कॉन्डम्स के क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट वन इज द फीमेल कॉन्डम. टुडे में ये आपको याद रखना है, इट कंटेन्स द नॉन-ऑक्सिनॉल 9 व्हिच इज द स्पर्मिसाइड.
and vaginal diaphragm and cervical caps are used with spermicide, they are not protective against HIV, and there is the risk of toxic shock syndrome if they persist in the body for more than 24 hours. Okay. Next we will take the oral contraceptives. Oral contraceptives में क्या होता है? Estrogen plus progesterone. Estrogen का mechanism of action क्या है? They basically down regulate the FSH production, and progesterone inhibit the LH release. Okay. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है दे इनहिबिट ओवुलेशन. जब एफएसएच और एलएच नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा. ओके. तो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? दे बेसिकली इनहिबिट द ओवुलेशन. ओके. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? दे मेक सर्वाइकल म्यूकस हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स. नेक्स्ट वन क्या होता है? इम्प्लांटेशन कैन नॉट हैपन बिकॉज इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एंडोमेट्रियम. तो आपको ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होने चाहिए कि किस तरीके से ओसीपीज काम करते हैं. ओसीपीज बेसिकली कंटेन्स द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. दे इनहिबिट द ओवुलेशन व्हिच इज द मेन मैकेनिज्म. नेक्स्ट क्या होते हैं? दे मेक सर्वाइकल म्यूकस हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स एंड इम्प्लांटेशन कैन नॉट हैपन बिकॉज इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एंडोमेट्रियम. ओके. ये वाले जो पिक्चर है दिस इज ऑफ ओसीपी. आप यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके. तो बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें 21 टैबलेट होती हैं और 7 टैबलेट होती हैं आयरन की. ये लास्ट वाली जो है दिस इज द आयरन टैबलेट्स. ओके. नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट ऑफ ओसीपीज क्या क्या हो सकते हैं? ये हमको पता है कि इट इज यूज्ड इन द फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस में ओसीपीज आर यूज्ड इन द कंटिन्यूअस मैनर. Okay, and it is also used in the irregular cycle. The non-contraceptive benefits of OCPs क्या है? It can be used in fibroids, in endometriosis, and in irregular cycle. Okay, the cancer associated with OCPs. If it is used for more than 5 years, then it can cause cervical cancer, and it can also cause breast carcinoma. Basically, it is the risk factor for cervical cancer and breast carcinoma. तो oral contraceptives का main mechanism of action क्या है? They inhibit ovulation, they make cervical mucus hostile for sperms, and they basically prevent implantation. और non contraceptive benefits हमने देख लिया OCPs का. They can use with fibroids, with endometriosis, and in irregular cycles. Cancer क्या associated with OCPs? Basically they are the risk factor for cervical and breast cancer. Absolute contraindications of OCPs. The first one is the undiagnosed vaginal bleeding. Okay. Second one is the history of, if a patient had history of stroke, thrombosis or coronary artery disease, तो we should not use OCP. Why? Because जो एस्ट्रोजन होता है they create the hypercoagulable state. Okay. Then pregnancy, then severe hypercholesterolemia and triglyceridemia. Okay. Basically जो estrogen है they increases the level of triglyceride. That's why not used. In liver failure, why? Because the metabolism of estrogen and progesterone occur in liver. Okay. Not used with breast cancer, smoker or vascular disease patient, uncontrolled hypertension and migraine. The last one is the after delivery for 21 days. Basically, we should not use OCP. Why? Because pregnancy is the hypercoagulable state. We know this. तो क्या होता है? Clotting factors are elevated even after the pregnancy. That's why OCPs are not used in lactating mother. Okay. And after pregnancy.
अब हाइपर कोगुलेबल स्टेट है तो उसको थोड़ा सा कम होने में टाइम लगता है, तो प्रेगनेंसी के बाद भी ये स्टेट मैनेज परसिस्ट करता है, इसलिए आफ्टर डिलीवरी 21 डेज तक यूज नहीं करेंगे। और लैक्टेटिंग मदर में भी ओसीपी का यूज नहीं करते हैं। मैम क्यों नहीं करते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। सॉरी, मैम क्यों नहीं करते हैं, एक बार रीजन फिर से बता दीजिए, प्रेगनेंसी बिकॉज इट में क्यों नहीं डिक्रीजेस द करते? मिल्क प्रोडक्शन, बिकॉज इट डिक्रीजेस द मिल्क प्रोडक्शन। ओके। Okay, then we will move towards the concept of missed pills. मिस्ड पिल्स क्या है? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी पिल्स मिस हुई हैं और कौन सी वीक में मिस हुई हैं। ओके, इफ ओनली वन पिल इज मिस्ड इन एनी वीक, तो इसमें क्या करना है, नेक्स्ट पिल कब लेनी है? जैसे ही पेशेंट को याद आया, पर्सन को याद आया, फीमेल को याद आया, एज सून एज पॉसिबल नेक्स्ट पिल ले लेनी है और कोई भी बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इफ टू पिल्स आर मिक्स्ड, ओके, कौन से वीक में? फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में। तो क्या करेंगे, जैसे ही फीमेल को याद आया तो उस दिन, जिस दिन उसको याद आया उस दिन वो 2 पिल लेगी और उसके नेक्स्ट दिन भी वो 2 पिल लेगी। ओके, अगर 2 पिल मिस हो गई हैं इन फर्स्ट और सेकेंड वीक, तो जैसे ही फीमेल को याद आया तो वो उस दिन, जिस दिन उसको याद आया उस दिन भी वो 2 पिल लेगी और उसके नेक्स्ट डे भी वो 2 पिल लेगी और बैकअप के तौर पे शी विल यूज, और हर पार्टनर विल यूज बैरियर मेथड एज अ contraceptive for 7 days. If a patient misses 2 pills in the 3rd week of the menstrual cycle, तो उसको क्या करना पड़ेगा? She should start the new pack. ओके, और 7 days तक के लिए उसको बैकअप यूज करना पड़ेगा। और इफ अ पेशेंट मिसेस 3 pills in any week, तो भी उसको न्यू पैक स्टार्ट करना पड़ेगा और 7 days तक के लिए उसको बैकअप यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि कितनी पिल मिस हुई तो क्या उसका प्लान है। उसके बाद अगर सिर्फ एक पिल मिस हुई और वो किसी भी वीक में मिस हुई तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही पेशेंट को याद आया तो वैसे ही एज सून एज पॉसिबल वो पिल ले लेगी। नेक्स्ट, अगर 2 पिल मिस हुए फर्स्ट या सेकेंड वीक में, तो जैसे ही उसको याद आया उस दिन वो 2 पिल लेगी और नेक्स्ट दिन भी वो 2 पिल लेगी और बैकअप के तौर पर वो या फिर उसका पार्टनर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेगा। अगर 2 पिल 3rd वीक में मिस हो गई है तो शी शुड स्टार्ट द न्यू पैक, एंड अगर 3 पिल मिस हो गई है किसी भी वीक में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फिर शी शुड स्टार्ट द न्यू पैक। नेक्स्ट वी हैव द माला डी एंड माला एन। माला एन इज मैम बेसिकली, माला yes, एन sir. इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है इथेनाइल एस्ट्राडायोल 30 माइक्रोग्राम एंड लिवोनॉर्जेस्ट्रेल 0.15 मिलीग्राम एंड 7 फेरस फ्यूमरेट टैबलेट। ये आपको याद रखना है कि मतलब फेरस का कौन सा फॉर्म होता है, फेरस सिट्रेट है या फ्यूमरेट है, तो इसमें फेरस फ्यूमरेट टैबलेट होते हैं। बेसिकली दिस इज द पिक्चर ऑफ माला डी। इसमें देखो लिवोनॉर्जेस्ट्रेल है कितना, 0.15 मिलीग्राम, इथेनाइल एस्ट्राडायोल है 30 माइक्रोग्राम एंड फेरस फ्यूमरेट है। ओके, एक आती है यास्मीन। यास्मीन में क्या होता है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल 30 माइक्रोग्राम होता है, पर इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ड्रॉसपेरिनॉन होता है, वो 3 मिलीग्राम होता है। ओके, तो माला डी एंड माला एन में आपको याद रखना है कि इथेनाइल एस्ट्राडायोल, लिवोनॉर्जेस्ट्रेल कितना प्रेजेंट होता है और फेरस का कौन सा वाला फॉर्म होता है। फेरस फ्यूमरेट है, सिट्रेट है, सल्फेट है, तो फेरस फ्यूमरेट का फॉर्म प्रेजेंट होता है। ओके, तो बेसिकली हमने क्या देखा, हमने स्टार्ट किया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, दे इनहिबिट द ओवुलेशन। इसके अलावा ये सर्वाइकल म्यूकस हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स एंड दे डज नॉट, दे बेसिकली प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ ओसीपीज में आता है फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस एंड इरेगुलर साइकिल, एंड बेसिकली दे आर द रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर।
हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लिए हैं। उसके बाद फिर मिस्ड पिल वाला कॉन्सेप्ट देख लिया कि अगर पिल मिस हो गई तो क्या करना है। फिर माला डी एंड माला एन का देख लिया है। माला डी और माला एन में आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड करती है और इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या आता है? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्शन एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली इम्प्लांट्स। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? They basically thickened cervical mucus. They cause thickened cervical mucus. They can also cause anevolution and decrease tubal peristalsis. Okay. तो इसकी वजह से क्या होता है? Risk of ectopic pregnancy increases. क्यों होता है ऐसा? अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ट्यूबल पेरिस्टाल्सिस कम हो गई है, तो जो हमारा जाइगोट बना है वो नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा और यहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा, तो इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या आता है? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्शन एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली इम्प्लांट्स। ओके, 3 टाइप के होते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? They basically cause thickened cervical mucus. इसकी वजह से क्या होता है? स्पर्म्स पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? They cause anevolution and they decreases the tubal peristalsis. तो अगर ये कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाता है तो इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। तो इसका यूजेस क्या है? फर्स्ट वन इज द used in women who cannot take estrogen containing OCPs. Main क्या है? They can use with breastfeeding female. Okay. They can use with a female who have history of thrombosis. लेकिन implants use नहीं करेंगे। आपको याद रखना है कि अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस है तो इसको प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स दे सकते हैं, ठीक है? उसको नो मैम। एंड दे हैव हिस्ट्री ऑफ having history of hypertriglyceridemia, उसमें भी हम पिल्स दे सकते हैं, लेकिन ये जो DMPA है, इंजेक्शन है, ये नहीं देंगे। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स में क्या होता है? इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरिन. इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी पिल। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मेनली कॉजेस थिकेंड सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है? सिराजिट एक मिनी पिल है जो इंडिया में अवेलेबल है। ये आप देखो यहाँ पे, इसमें क्या होता है? 75 माइक्रोग्राम ऑफ डिजोजेस्ट्रिल। ये अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? लेकिन वैसे बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है, दे मेनली कॉजेस थिकेंड सर्वाइकल म्यूकस। लेकिन जो सिराजिट है जो अवेलेबल है इंडिया में, दे कॉजेस एनओवुलेशन। और इसके अंदर क्या होता है? 75 माइक्रोग्राम ऑफ डिजोजेस्ट्रिल। देन वी हैव द प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन। इसमें आता है DMPA। DMPA का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट। ओके, ऑल्सो नोन एज द डिपो-प्रोवेरा। तो DMPA को क्या बोलते हैं? प्रोवेरा। ओके, इसका रूट क्या होता है? रूट इज द IM। इसका रूट है IM। डोज इज 150 मिलीग्राम एंड गिवन एवरी 3 months। गिवन एवरी 3 months। ओके, DMPA क्या है? प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस में आता है डिपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट, which is also known as the Provera. Okay, इसका रूट है IM और डोज है 150 मिलीग्राम, which is given every 3 months. अदर बेनिफिट्स में क्या होता है? They decreases the seizure. तो अगर कोई सीजर पेशेंट है तो दिस इज द कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन सीजर पेशेंट।
These are the contraceptive of choice in patient of sickle cell anemia. It can be used in lactating female and they basically prevent the PID. Disadvantages of DMPA क्या है? It can cause osteoporosis, weight gain and diabetes mellitus. सबसे जो इसका डिसएडवांटेज होता है इसमें है रिवर्सल ऑफ फर्टिलिटी. इसको स्टॉप करने के बाद भी जो फर्टिलिटी का रिवर्सल होता है उसमें टाइम लगता है. बेसिकली 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर तक फर्टिलिटी रिवर्स कर पाती है. ओके, दिस इज द बेसिक डिसएडवांटेज, मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ द DMPA. ओके, तो 1 से लेके 1 ईयर से 1.5 ईयर के बाद फर्टिलिटी रिवर्स कर पाती है. नेक्स्ट वी हैव द इम्प्लांट्स. इम्प्लांट्स में दो चीजें हैं, इम्प्लेनॉन एंड नेक्साप्लेनॉन. इम्प्लेनॉन में ये दिस इज द पिक्चर ऑफ इम्प्लांट्स. इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? 68 मिलीग्राम इटनॉर्जेस्ट्रेल. ओके, और रिलीज कितना करता है ये? पर डे 67 माइक्रोग्राम ये रिलीज करता है. इट इज रिप्लेस्ड एवरी 3 years एंड इज द रेडियोलूसेंट. रेडियोलूसेंट का मतलब क्या हुआ? It cannot be visualized on X-ray. Next we have the nexaplanon which is the radio opaque. Basically implants में आपको क्या क्या याद रखना है? Least failure rate होता है. Implants का least failure rate होता है. This is the most important point regarding the implants. हमने अभी देखा प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इसमें 3 चीजें आती हैं, पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, they cause a thickened cervical mucus and ovulation and basically they decrease the tubal peristalsis. इसकी वजह से ectopic pregnancy का रिस्क बढ़ जाता है. प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को हम ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल में यूज कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी पिल. और जो इंडिया में मिनी पिल अवेलेबल है वो है सिराजेट. उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दे कॉज द एन ओवुलेशन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन. प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन में सबसे पहले आता है DMPA. DMPA का फुल फॉर्म है डिपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट. इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोवेरा. इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है IM एंड डोज इज 150 मिलीग्राम गिवन एवरी 3 months. अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन सीजर पेशेंट एंड पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया. इट कैन यूज्ड इन विद लैक्टेटिंग फीमेल. इसका डिसएडवांटेजेस में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका डिसएडवांटेज है कि रिवर्सल ऑफ फर्टिलिटी 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर के बाद होगी. इम्प्लांट्स में क्या है? इम्प्लेनॉन और नेक्साप्लेनॉन आता है. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये इम्प्लेनॉन वाला जो होता है दैट इज रेडियोलूसेंट और इसका फेलियर रेट लीस्ट होता है. नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में आती हैं नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट लिपीज लूप. सेकेंड जनरेशन में आती हैं कॉपर कंटेनिंग, that is copper T380A and multi-load 375. Okay, and third generation में आती है hormone containing Mirena and progesterone. तो नॉन मेडिकेटेड लिपीज लूप बस आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में आती है. बेसिकली दे आर नॉट यूज्ड नाउअडेज, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. सेकेंड जनरेशन में आती है कॉपर T380A एंड मल्टीलोड 375. जो कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जो कॉपर होता है दे एक्ट ऑन एंडोमेट्रियम and they causes certain changes like mild aseptic inflammation. इसकी वजह से क्या होता है? दे यहाँ पे aseptic inflammation हो जाता है और उसकी वजह से दे प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन. तो कॉपर जो होता है दे एक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम एंड कॉजेज एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन. इसकी वजह से दे प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन.
नेक्स्ट वन इज द दे हिंडर स्पर्म एसेंट। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ कि कॉपर वाले जो होते हैं दे कॉजेज एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन एंड हिंडर्स द स्पर्म एसेंट। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन रिलीजिंग leads to decidolization of endometrium and atrophy of endometrial glands. Okay, तो हार्मोन रिलीजिंग में कौन कौन से आ रहे थे? मिरेना एंड प्रोजेस्टासर्ट. They cause the atrophy of endometrial glands and thus inhibit implantation, and they also make cervical mucus impermeable, and they sometimes inhibit ovulation. They cause an ovulation. तो आपने याद रखना है कि कॉपर कंटेनिंग जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दे कॉज द माइल्ड एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से दे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड दे हिंडर द स्पर्म एसेंट. ओके, और हार्मोन रिलीजिंग वाले क्या करते हैं? दे कॉज द एट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, दे मेक सर्वाइकल म्यूकस इम्परमिएबल एंड दे इनहिबिट द ओवुलेशन. यहाँ पे कुछ लाइफ स्पैन दिया हुआ है. कॉपर T380 का होता है 10 इयर्स और प्रोजेस्टासर्ट का होता है 1 ईयर एंड मिरेना का 5 इयर्स. ओके, ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड हम देखेंगे कॉपर T380A. इट इज ऑल्सो नोन एज द पैरागार्ड. इसमें बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, आपको पता होना चाहिए. पैरागार्ड क्या होता है, फेमशील्ड क्या होती है, प्रोवेरा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो कॉपर T380A का मतलब क्या हुआ? ओके, बेसिकली इट इज टी शेप्ड. ओके, इट कंटेन्स कॉपर. ए का मतलब हुआ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द आर्म्स. तो कॉपर कैसे कैसे प्रेजेंट होता है? 314 यहां पर होता है एंड 33 ऑन बोथ आर्म्स. ओके, दैट्स व्हाई इसको जब हम टोटल करेंगे तो 380 आएगा. इस वजह से कॉपर T380A इसको बोलते हैं. इसमें से 380A में से रिलीज कितना करता है ये? पर डे 50 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करता है. मेथड ऑफ इंसर्शन में आपने बस याद रखना है कि नो टच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे करके ये कॉपर टी जो होता है वो ऐसे पैक होता है. फिर इसको जब हम इंसर्ट करते हैं एप्लीकेटर के थ्रू, प्लंजर के थ्रू, उसको जब पुल करते हैं तो फिर ये यूट्रस में जाके अपने आप से ओपन हो जाता है. इसके पार्ट को टच नहीं किया जाता. ओके, तो दिस इज नोन एज द नो टच टेक्निक. कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज द ब्लीडिंग एंड नेक्स्ट वन इज द पेन. और ये एक्सपल्जन भी हो सकता है. एक्सपल्जन रेट जो है इसका वो 8 to 10% है. दे कॉजेज इंक्रीज रिस्क ऑफ PID. PID का जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म था वो था क्लमाइडिया. तो कॉपर टी इंसर्ट करने से पहले हम पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं अगेंस्ट द क्लमाइडिया. दे कैन कॉज परफोरेशन एंड दे कैन ऑल्सो कॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो copper T380A is also known as the Paragard, which is distributed free of cost by the government of India, releases 50 microgram per day. इसका मैंने बता दिया 314 is present on the stem and 33 on the arms. Okay, method of insertion क्या है? No touch technique होता है. Complications में most common complication is the bleeding and next one is the pain. Most common complication for removal, एक question आ सकता है ऐसे कि most common complication that causes removal of intrauterine device is pain. Most common complication is the bleeding, लेकिन अगर removal का जो cause होता है वो basically pain होता है. ठीक है? And they increases the risk of perforation and ectopic pregnancy. Next one is the Mirena. It contains 52 milligram levonorgestrel. यहाँ पे इसका ये image है. यहाँ पे this is the reservoir of levonorgestrel hormone. Mirena is the third generation and they releases 20 milligram daily and इसका लाइफ स्पैन होता है 5 years.
Wie viel ist das agora que minha mão, não? Deixa eu ficar lá com एब्सोल्यूट Só vou कॉन्ट्रा, chegar किसी e का aí. माइक ऑन है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कॉपर एलर्जी है या फिर विल्सन डिजीज है, तो पेशेंट की बॉडी में खुद ही बहुत सारा कॉपर है, तो हम कॉपर कंटेनिंग नहीं देंगे। कोई यूट्राइन एनोमेली है तो इसमें नहीं देंगे। परप्यूरल सेप्सिस है, बिकॉज इसके में पीआईडी वगैरह के चांसेस होते हैं, तो परप्यूरल सेप्सिस में इसको नहीं देंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम इंसर्ट कब करेंगे इसको। तो कॉपर टी को हम इंसर्ट कर सकते हैं पोस्ट प्लासेंटल, पोस्टपार्टम या फिर आफ्टर 6 वीक्स। तो टाइम ऑफ इंसर्ट क्या क्या हो सकता है? पोस्ट प्लासेंटल क्या है? डिलीवरी के विद इन 10 मिनट्स। पोस्टपार्टम क्या है? आफ्टर 10 मिनट्स बट विद इन 48 आवर्स। या फिर थर्ड वन इज द आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पोस्टपार्टम को पोस्टपार्टम इंसर्शन को प्रेफर करती है। ओके, तो कॉपर टी पोस्ट प्लासेंटल, पोस्टपार्टम या फिर आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी इंसर्ट कर सकते हैं। पोस्ट प्लासेंटल में क्या है? विद इन 10 मिनट्स। पोस्टपार्टम में आफ्टर 10 मिनट्स बट विद इन 48 आवर्स ऑफ द डिलीवरी एंड आफ्टर 6 वीक इसको इंसर्ट कर सकते हैं। परप्यूरल सेप्सिस में हम इसका यूज नहीं करेंगे, अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग में भी नहीं करेंगे, कोई इन्फेक्शन है तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली दे आल्सो इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ पीआईडी। कैंसर में नहीं उसका यूज करना है, कोई भी टाइप का कैंसर, सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन कैंसर, बेसिकली मैलिग्नेंसी कोई भी टाइप की हो, इसमें इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। जीटीटी में नहीं देंगे और यूट्राइन एनोमेली एंड कॉपर एलर्जी में इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। हमने अभी देखा है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आपको जनरेशन पता होनी चाहिए। इनर्ट वाला फर्स्ट जनरेशन जो है वो लिपीज लूप है, बस नाम पता है होना चाहिए। सेकंड में कॉपर टी 380A एंड मल्टी लोड 375 एंड थर्ड में मिरेना एंड प्रोजेस्टा असर्ट। कॉपर टी वाला जो होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? बेसिकली दे कॉज एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन एंड हिंडर्स द स्पर्म एसेंट, हार्मोन रिलीजिंग में एट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड दे मेक सर्वाइकल म्यूकस इम्परमिएबल एंड इनहिबिट द ओवुलेशन। लाइफ स्पैन ये आपने याद रखना है। कॉपर टी वाले का हमने देख लिया कि कॉपर टी 380A इसको क्यों कहते हैं और पैरागार्ड इसका नाम है। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसको इंसर्ट करने की टेक्निक क्या है और रिलीज कितना करता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे इसके, ये देख लेना है हमें। मिरेना इज द थर्ड जनरेशन, ये भी हमने देख लिया, और इट कंटेन्स द लेवोनॉर्जेस्ट्रिल। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट इंडिकेशन है हमारे पास स्लिपेज या ब्रेकेज ऑफ द बैरियर मेथड। ओके, फॉरगेट टू टेक ओसीपीज, किसी ने मिस कैलकुलेटेड सेफ डेज। ओके, फेलियर ऑफ क्वाइटस इंटरप्टस एंड रेप, दो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस जो होते हैं वो बेसिकली हाउ दे वर्क, इसका इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होता है? दे डिले ओवुलेशन, दिस इज द फर्स्ट वन, दे आर स्पर्मिसाइडल एंड दे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो मोस्ट कॉमन यूज जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है दैट इज लेवोनॉर्जेस्ट्रिल। ओके, इसकी डोज होती है 1.5 मिलीग्राम सिंगल डोज, या फिर 0.75 मिलीग्राम में आती है तो हम 2 टैबलेट्स दे सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड। मोस्ट इफेक्टिव हार्मोनल मेथड जो होता है दिस इज द उलीप्रिस्टल विच इज ऑल्सो नोन एज द ईला। ओके, तो ईला क्या है? ईला इज द selective progesterone receptor modulator. They
डिले ओवुलेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? 30 मिलीग्राम सिंगल डोज अप टू 120 आवर्स। बेसिकली जो हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं इमरजेंसी, वो हमें लेस देन 3 डेज में यूज कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हम 5 डेज तक भी यूज कर सकते हैं। उसमें एक आता है हमारे पास उलिप्रिस्टल। ये होता है सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, दे डिले द ओवुलेशन। इसकी डोज है 30 मिलीग्राम सिंगल डोज अप टू 120 आवर्स। एंड द मोस्ट इफेक्टिव वन इज द कॉपर टी। तो आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज द लेवोनॉर्जेस्ट्रल, मोस्ट इफेक्टिव वन इज द कॉपर टी व्हिच इज द इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एंड मोस्ट इफेक्टिव हार्मोनल मेथड इज द उलिप्रिस्टल। ओके, drugs used for emergency contraception. First one is the levonorgestrel tablet, which is most commonly used. Second one हमारे पास आता है USP method. USP method में क्या है? OCPs with 50 microgram ethinyl estradiol 2 tablets twice 12 hours apart, या फिर 30 माइक्रोग्राम इथेनाइल एस्ट्राडायोल होता है 4 टैबलेट्स ट्वाइस 12 आवर्स अपार्ट। ये दोनों आते हैं यूएसपी मेथड में। इसके अलावा हो सकता है मिफीप्रिस्टोन, विच कैन बी, उसका डोज होती है 10 मिलीग्राम एंड इट कैन बी टेकन एज सून एज पॉसिबल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? एंटी इम्प्लांटेशन। इसके अलावा डेनाजोल, यूलिप्रिस्टल हमने देख लिया है। जो आईयूसीडी इंसर्शन होता है विद इन 5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स, इसको यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को 5 डेज तक यूज कर सकते हैं। बेसिकली 72 आवर्स के अंदर अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स। लेकिन यूलिप्रिस्टल और कॉपर टी को हम 5 डेज के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक होती है सेंट क्रोमैन। इसकी डोज है 2 टैबलेट्स 60 मिलीग्राम ट्वाइस इन 24 आवर्स विद इन 24 आवर्स। ओके, विद इन 24 आवर्स हमें 60 मिलीग्राम टैबलेट देनी है ट्वाइस। ओके, 60 मिलीग्राम, ओके, ट्वाइस इन 24 आवर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ इंटरकॉर्स। तो ड्रग्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं? लिवोनॉर्जेस्ट्रल। यूएसपी मेथड में आपको याद रखना है कि इथेनाइल एस्ट्राडायोल का इस्तेमाल करते हैं। मिफीप्रिस्टोन 10 मिलीग्राम एंड एंटी इम्प्लांटेशन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूलिप्रिस्टल और आईओसीडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 5 डेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंट क्रोमैन टैबलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट वन इज द अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। this is contraception. Okay, the first one is the Gaussipol. अदर कॉन्ट्रासेप्शन में फर्स्ट आता है Gaussipol. Gaussipol is discovered in China. It is extracted from cotton seed oil. इसका मेन इंपॉर्टेंट गॉसिपॉल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये फर्स्ट ऐसा है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। ओके, ये फर्स्ट ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो गॉसिपॉल आपने क्यों याद रखना है? बिकॉज दे इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट वन इज द सेंटोक्रोमेन। ओके, इसका जो ट्रेड नेम है वो है सहेली और सेंट्रॉन। इट कंटेन ऑर्मिलॉक्साफेन, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीडीआरआई लखनऊ ने इसको बनाया है और दे प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। तो गॉसिपॉल क्या है? गॉसिपॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दे इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेंट क्रोमैन इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। अब हमारे पास एक टॉपिक है पर्ल इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स क्या होता है? यूज्ड टू मेजर फेल्योर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर। ओके, तो 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ये कितना होता है पर 100 वुमेन ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि 100 फीमेल है, दे आर यूजिंग सेम कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर a period of 1 year. This is known as the 100 women year.
अब सपोज करो कि इतने 100 में से 3 जो हैं उनको एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज हो गई, तो पर्ल इंडेक्स जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही थी उसका पर्ल इंडेक्स क्या हुआ, 3 हुआ। इसका मतलब ये होता है 100 वुमेन ईयर का मतलब ये होता है कि 100 फीमेल यूजिंग द सेम कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, इसको बोलते हैं 100 वुमेन ईयर। अगर इसमें से 3 को एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई तो पर्ल इंडेक्स ऑफ दैट कॉन्ट्रासेप्टिव इज द 3। पर्ल इंडेक्स में जितना लेस पर्ल इंडेक्स होगा उतना बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव होगा। ओके, सपोज करो किसी का पर्ल इंडेक्स 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 फीमेल आर यूजिंग द सेम कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 1 ईयर और उसमें से 1 को एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है 1, तो उसको बोलेंगे उसका पर्ल इंडेक्स 1 होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज इनटू 1200 अपॉन टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर। ये जो टेबल है ये ली गई है दत्ता से। इसमें आप देखो मैंने आपको बताया कि जितना लेस पर्ल इंडेक्स होगा उतना कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट होगा, तो इसमें देख लो कि इम्प्लेनॉन है 0.01, दिस इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, नेक्स्ट वी हैव द परमानेंट मेथड। तो हमने टेम्पररी मेथड में क्या क्या देख लिया, हमने टेम्पररी मेथड में बैरियर मेथड देख लिया, हमने ओसीपीज देख लिया, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस देख लिए। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे परमानेंट मेथड में आता है 2 मेथड होते हैं, ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी। ओके, ट्यूबेक्टमी इज डन इन द फीमेल, ट्यूबेक्टमी इज बेसिकली ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन का साइट होता है इस्थमस, इस्थमस पे भी कहाँ पे, प्रॉक्सिमल एंड मिडिल 1/3 पे इसका साइट होता है। मेथड क्या होता है, 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं और मिनी लेप्रोटमी भी कर सकते हैं। ओके, टाइम क्या होता है परमानेंट का, अगर कोई पोस्टपार्टम फीमेल है तो 24 to 48 आवर्स अप टू 1 वीक आफ्टर डिलीवरी, या फिर मोर देन 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। 24 to 48 आवर्स अप टू 1 वीक आफ्टर डिलीवरी एंड या फिर मोर देन 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। अगर 6 वीक वाला कर रहे हैं तो वी विल यूज द लेप्रोस्कोपिक वन, और अगर 24 to 48 आवर्स वाला कर रहे हैं तो वी विल यूज द मिनी लेप्रोटमी। लेप्रोस्को अगर उसके अलावा जो है हु हैज नॉट डिलीवर्ड रिसेंटली, तो फर्स्ट 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो टाइमिंग आपको देख लेने के, टाइमिंग क्या है परमानेंट ट्यूबल लाइगेशन करने के। लेप्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, 2 पोर्ट बनाते हैं, जैसे अम्बेलिकस एक यहाँ पे बनाते हैं और एक एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पास एक पोर्ट बनाते हैं। यहाँ पे इस वाले पोर्ट में हम कैमरा इंसर्ट करते हैं और इधर से लेप्रोस्कोप डालते हैं, और इधर वाले पोर्ट में वी यूज द एप्लीकेटर, और एप्लीकेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फेलोप रिंग, हल्का क्लिप्स, फिल्शी क्लिप्स या फिर इलेक्ट्रोकॉटरी के इस्तेमाल से ट्यूबल लाइगेशन कर सकते हैं। फेलोप रिंग क्या है, सपोज दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, इसको क्या करेंगे इस तरीके से करके यहाँ पे रिंग का इंसर्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द हल्का क्लिप्स, फिल्शी क्लिप्स एंड इलेक्ट्रोकॉटरी। इसके अलावा मिनी लेप्रोटमी, मिनी लेप्रोटमी के बहुत सारे मेथड होते हैं। द फर्स्ट वन इज द पोमरॉइज मेथड विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड। इसमें क्या करते हैं, आप इस पिक्चर में देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि ट्यूब इज ग्रास्प्ड इन द मिड पोर्शन यूजिंग द बैबकॉक फॉर्सेप। बैबकॉक फॉर्सेप से ट्यूब को ग्रास्प करना है, उसके बाद फिर सूचर कर देना है, और उसके सूचर करने के बाद सेगमेंट ऑफ ट्यूब जो ऊपर की साइड यहाँ बचा है इसको एक्साइज कर देना है। फिर क्या होगा, तो सूचर डिसॉल्व कर जाएगा और ट्यूब का एंड जो है वो रिट्रैक्ट कर जाएगा। तो दिस इज द पोमरॉइज मेथड।
दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड. इतना आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि पोमरॉइज मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर ट्यूबल लाइगेशन. मॉडिफाइड पोमरॉइज क्या होता है, इसमें सिर्फ प्लेन कैटगट का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रोमिक कैटगट. तो पोमरॉइज मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड. नेक्स्ट वन होता है पार्कलैंड. पार्कलैंड में क्या है, जो एवेस्कुलर रीजन होता है, यहाँ पर एक विंडो को क्रिएट करते हैं और फिर सेकेंड वन यहाँ पे डबल लाइगेशन कर देते हैं. थर्ड वन इज द इरविंग मेथड. इरविंग मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले डबल लाइगेट करेंगे. फिर जो मिड पोर्शन है इसको एक्साइज कर दिया. एक्साइज करने के बाद जो दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड, तो प्रॉक्सिमल एंड को मायोमेट्रम में बरी कर देंगे. ओके तो इसमें क्या करना है, डबल एक्साइज मिड पोर्शन को एक्साइज करके डबल लाइगेट करेंगे और जो प्रॉक्सिमल एंड है इसको बरी कर देंगे मायोमेट्रियम में. दिस इज द इरविंग्स मेथड. उसके बाद आता है उचीडा टेक्निक. उचीडा टेक्निक में क्या है, हाइड्रोडाइसेक्शन डन. सबसे फर्स्ट हाइड्रोडाइसेक्शन डन, इसमें हाइड्रोडाइसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, इंजेक्टिंग सिरोसा विद नॉर्मल सेलिन एंड एपिनेफ्रीन. यहाँ पे देखो इमेज में आपने इसको किया. फिर जो ये प्रॉक्सिमल एंड इज टाइड एंड लेफ्ट इनसाइड द सिरोसा. प्रॉक्सिमल एंड को सिरोसा के साथ टाई कर देते हैं और डिस्टल एंड को पर्स स्ट्रिंग सूचर के थ्रू टाई करते हैं. दिस इज द पर्स स्ट्रिंग सूचर. ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि मोस्ट कॉमन टेक्निक जो यूज होती है दैट इज द पोमरॉइज टेक्निक, और इसमें फेल्योर रेट किसका कितना होता है. और नेक्स्ट वन इज द क्रोइनर्स फिम्ब्रेक्टमी. फिम्ब्रेक्टमी आपको समझ आ रहा होगा कि फिम्ब्रिया को रिमूव करते हैं. तो परमानेंट मेथड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से मेथड, लेप्रोस्कोपिक एंड मिनी लेप्रोटमी. लेप्रोस्कोपिक में फेलोप रिंग, हल्का क्लिप, फिल्शी क्लिप और इलेक्ट्रोकॉटरी कर सकते हैं. इसके अलावा मिनी लेप्रोटमी में पोमरॉइज मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, पार्कलैंड मेथड, इरविंग्स एंड उचीडा टेक्निक. लीस्ट फेल्योर रेट, इन सब में से लीस्ट फेल्योर रेट जो होता है वो क्वाट्री का होता है. उसके बाद फिर है उचीडा, इरविंग एंड पोमरॉइज. पोमरॉइज में से भी यहाँ पे मॉडिफाइड पोमरॉय एंड देन पोमरॉइज. अब चांसेस ऑफ रीकैनालाइजेशन, अगर कोई रीएनास्टोमोसिस करना चाहता है दैट इज बेस्ट विद द क्लिप्स. क्लिप्स में क्या है, हमने सिंपल यहाँ पर क्लिप्स लगाई थी. अगर पेशेंट दोबारा अपनी फर्टिलिटी, मतलब पेशेंट चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे क्लिप्स को, सिंपल. उसके बाद फेलोप्स रिंग एंड देन द पोमेरॉय. एक होता है एश्योर. एश्योर क्या है, एश्योर इज द हिस्ट्रोस्कोपिक मेथड. यहाँ पे ये देखो, एश्योर एक हिस्ट्रोस्कोपिक मेथड है. इसमें हम इसको इंसर्ट करते हैं हिस्ट्रोस्कोप के थ्रू. कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में. फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, दे आर इंसर्टेड इन द इंट्राम्यूरल पोर्शन. इंट्राम्यूरल पोर्शन में इंसर्ट करते हैं. ये क्या करता है, ये इरिटेट करता है फेलोपियन ट्यूब को. फिर उससे क्या होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है और उसके बाद वहां पे स्कार टिश्यू बन जाता है. ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिहाइंड द एश्योर. एश्योर क्या है, देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, दिस इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील. इसको हिस्ट्रोस्कोप के थ्रू इंसर्ट करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करने के बाद ये क्या करता है, दे इरिटेट द फेलोपियन ट्यूब. वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, हीलिंग होती है और स्कार टिश्यू बन जाता है, जिससे परमानेंट ब्लॉकेज हो जाता है फेलोपियन ट्यूब्स का. नेक्स्ट वी हैव द वेसेक्टमी. वेसेक्टमी में क्या करना है, हम इसमें सिंपली सेगमेंट ऑफ वास डिफरेंस इज कट, लेकिन आपको याद रखना है कि पेशेंट जो है फौरन से स्टेराइल नहीं होता. तो बैकअप इज नीडेड फॉर 3 months.
तो वैसेक्टमी करने के 3 मंथ के बाद 3 मंथ तक पेशेंट को यूज करना होता है कोई भी अदर मेथड लाइक बैरियर मेथड, क्योंकि वैसेक्टमी करने के फौरन बाद पेशेंट स्टेराइल नहीं होता। दिस इज द लास्ट स्लाइड। आपको याद रखने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिस इज द टेबल टेकन फ्रॉम द साक्षी अरोड़ा। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय कपल्स इन इंडिया, दिस इज द बैरियर मेथड। बेस्ट मेथड ऑफ contraception for couples staying far is the barrier method. Best method for newly married couple is the OCPs. Safest method is the barrier method. HIV पेशेंट्स में बेस्ट मेथड होता है IUCD प्लस बैरियर। ये मैंने आपको बताया था कि बैरियर इज यूज्ड बाय द मेल पार्टनर एंड IUCD इज यूज्ड बाय द फीमेल पार्टनर। फीमेल स्टेरिलाइजेशन का मोस्ट कॉमनली यूज मेथड जो है वो मिनी लेप्रोटमी है, उसमें हम मॉडिफाइड बोमरॉयस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लीस्ट इफेक्टिव मेथड इज द हल्का क्लिप्स। हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज विद द कॉटरी। लीस्ट फेल्योर रेट इज विद द उचीडा एंड लीस्ट फेल्योर इन लेप्रोस्कोपी इज विद द यूनिपोलर कॉटरी। ये इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं, बेसिकली आपको ये वाला पूरा याद करना है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।